A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce some of the important practical problems related to the first chapter of class 12 accountancy, that is in financial statement of not-for-profit organization. You know very well, in the last few videos we already discussed a lots of the practical portion as well as the theoretical portions related to the first chapter of class 12 accountancy. And in this video, firstly we discussed some of the important questions related to your book, that is in question number 25, 26, 27 and 28, 29 and 20 and 30. And all these questions are related to the computation of consumable goods which will be debited into the income and expenditure account. So without creating any delay, let's start the first question of today's video. The question number 27, and this question is asked in the year 2020 CBSE in Rajasthan, and the question is, from the given information of a hospital, calculate the amount of medicine consumed during the year 2018-19, and the information are as follows. Creditors for medicine purchased on the beginning first for 2018 is 34,000, at end 29,000. Amount of medicine on first for 2018 is 86,000 and at the end is 39,000. Advance to supplier of medicine is 26,000 in beginning and 32,000 at end. And the two additional information is given. Credit purchase of medicine is 4,99,000 and cash purchase of medicine during this 2,20,000. And you have to find out the amount of medicine consumed to be debited to the income and expenditure account. So first of all, we create a format, and this question is related to the consumable goods. And the information are as given as follows. That is in, you know very well. First of all, in this question, the two purchases clearly given is credit purchase and cash purchase. So you know very well, amount paid to the creditor is not given in this question. So it's very simple. First of all, we find out the total purchase of medicine. So total purchase of medicine equals to cash purchase plus credit purchase, and which are given in this question is 2,20,000 is the cash purchase, 4,99,000 is the credit purchase. So total purchase during the year will be a 7,19,000. Okay, and in which firstly we add opening stock, and opening stock of medicine is 86,000. So this value is 8,05,000, and deducted closing stock of medicine, and closing stock of medicine is 39,000, and the value is 8,66,000, 7,66,000, and this value will be debited to the income and expenditure account as consumable goods. So you can see that how we will calculate the consumable goods with the help of the given information. The most and important thing is that कि आप देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन, ओपनिंग एडवांस्ड इज गिवन, क्लोजिंग एडवांस्ड इज गिवन, but there's a no need to consider creditors and advance in this question, because question में clearly total purchase is given, cash purchase and credit purchase is given,
एंड दैट्स वाई टोटल कैश एंड क्रेडिट परचेस को ऐड करोगे तो वी फाइंड आउट द टोटल परचेस। एंड जब हम टोटल परचेस को कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है परचेस में हमें सिर्फ कंज्यूमेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है 28, क्वेश्चन नंबर 28, and question number 28 says that calculate the amount that will appear against the item stationery account in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. Opening credit is 40,000, closing is 58, opening stock is 30,000, closing is 25,000. During the year, the payment made to these creditors amounted to 1,62,000. And stationery purchase in cash during the year was 25% of the total purchase of the stationery. So it is very clear in this question. हमें सिंपल सा इस क्वेश्चन में पता है कि अमाउंट पेड टू स्टेशनरी कितना किया है। अमाउंट पेड टू स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेस करने के लिए, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेस करने के लिए कितना पे किया गया है, 162। और इसमें क्लियरली लिखा है स्टेशनरी परचेस कैश में जो है 25% टोटल का। तो पहले भी हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं, सिंपल सा पहले ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट एंड और माइनस करेंगे creditors at beginning. So creditors at end will be a 58 and beginning is 40. So ये आ गया आपका स्टेशनरी परचेज, क्योंकि इसमें एडवांस तो है नहीं, आपने ड्यूरिंग देयर कितना स्टेशनरी परचेज किया, इसको एड लेस करके 18,000 ऐड करना है तो 180 आपने टोटल स्टेशनरी परचेज किया। यस, आंसर आ गया। Is total stationery purchases 180, 40, 58, 162 में 58 इंड का ऐड किया, ओके। तो 18 अगर ऐड करेंगे तो 180 आ गया स्टेशनरी परचेज। अब उसमें आपको पता फाइंड आउट करना है द टोटल स्टेशनरी, क्योंकि ये जो परचेज आएगा स्टेशनरी परचेज, ये कैसा परचेज है, इट विल बी अ क्रेडिट स्टेशनरी परचेज। जो स्टेशनरी आपने परचेज किया है 180, वो कैसी स्टेशनरी है कि आपने स्टेशनरी किसमें परचेज किया है, क्रेडिट में। तो अब आप कैश परचेज कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए आपको पता है फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है आपको। फॉर्मेट इज दैट कि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि टोटल परचेज equals to 25% टोटल परचेज जो है, सॉरी कैश परचेज जो है वो 25% है किसका, टोटल परचेज का, ठीक। तो अगर हम टोटल परचेज को मान लें 100 तो कैश परचेज कितना होगा 25, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा 75। इतना तो क्लियर हो गया कि क्रेडिट परचेस क्यों 75 होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। सो 180 इज इक्वलिंग टू द 75 और हमें क्या चाहिए, कैश परचेस। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 60,000। सो 60,000 विल बी अ कैश परचेस। यस, वो भी आ गया। तो क्रेडिट परचेस गिवन है। अब आप क्या करोगे, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी 180, उसमें प्लस करोगे कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी 60,000, ये आ गया टोटल परचेज। अब इस टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी में आप क्या करोगे, ऐड करोगे बिगनिंग का और माइनस करोगे एंड का। ऐड करोगे बिगनिंग का, बिगनिंग का कितना है इसमें 30 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी
और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी विल बी 30,000 and closing is 25,000. So answer will be 2,45,000. And this will be 2,45,000 amount debited to the income and expenditure. नोट डाउन करिए फटाफट. आपने देखा क्वेश्चन नंबर 28. पहले हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में स्टेशनरी परचेज निकाला. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी क्लियरली लिखा हुआ है. पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 162. तो आपने उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल दिया कि आपने कितना क्रेडिटर्स परचेज किया है देने के लिए. तो ये क्रेडिट परचेज हो गया. आपने इक्वेशन की हेल्प से कैश परचेज में निकाल लिया. टोटल परचेज आ गया, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या किया, एडजस्ट किया. तो यू विल फाइंड आउट दी स्टेशनरी कंज्यूम, ये निकल के आएगा. और इन दिस अमाउंट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. Okay, so please note down. And after that we will move to the next type of the question which are related to the subscription as well as the accounting treatment of the specific reserve. इस क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. See the question very carefully. The question of 14A says that from the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and show the item in the balance sheet as the that date. Subscription in year 2018 12,500. Subscription received in advance on 31st March 2018 for the year ended 31st March 2019. 2018 का एडवांस आपको मिला कब, 2019 में 9,000. टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 4,60,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, 8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड 3,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31st March 2019 यानी एट द एंड का ये सब्सक्रिप्शन गिवन है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करते हैं. आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ऐड करते हैं एडवांस एट बिगिनिंग और माइनस करते हैं एडवांस एट एंड. और डेट इज ऑल्सो गिवन. जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है इसका डेट ये है क्योंकि हम लोग कब बना रहे हैं, 31st March 2019 को बना रहे हैं. तो ये अमाउंट जो क्रेडिटेड आएगी, अमाउंट credited to income and expenditure account on 31st March 2019 की वैल्यू. ठीक, अभी 31st March 2019 इससे रिलेटेड होगा एंड. और एडवांस एंड का मतलब क्या होता है, 2019 का ना होकर वो पैसा कब का मिला हो, 2020 और 21 का. ठीक है. अगर आपको कोई पैसा अगले साल का मिला है 2020-21 का, वो एडवांस एट एंड होगा. आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का, 2018 का. और एडवांस एट बिगनिंग का मतलब भी क्या है, 2000. ऐसे अगर आप डेट क्लियर कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं. जैसे इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 4,60,000. अब इसमें लिखा है क्लियर कि जिसमें से 10,000 रुपए प्रीवियस ईयर का मिला है, यानी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 10,000 माइनस कर दो. नेक्स्ट ईयर का कितना मिला है, नेक्स्ट ईयर का मिला है 3,000 and 8,000. 8,000 for the next year, 3,000 for the next to next year. So 8,000 plus 3,000 equals to 11,000. ये माइनस कर दो. उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. हमें सीधे सीधे क्या करना है,
outstanding at end it is clearly given, that is in subscription outstanding for the year ended 31st March 2019 is 20,000. Total outstanding is 20,000. Total outstanding is 20,000, जिसमें से हम बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वो डिडक्ट करेंगे. जैसे बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था, बिगनिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग था, इट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. सो बिगनिंग का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा अभी भी है. जैसे इंड में 20,000. अच्छा, फॉर इट इज क्लियरली गिवन कि बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो 12,500 है और मिला कितना है हमको. तो ये जो 20,000 है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. ऐसा नहीं लिखा है तो इसको हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे. यानी टोटल अगर एंड का आउटस्टैंडिंग देखा जाए तो कितना है 20,000 और प्रीवियस ईयर का कितना बचा. शुरू में था 12,500, 10,000 मिल गया तो 2,500 भी बाकी है. और एडवांस एट बिगनिंग कितना है, एडवांस एट बिगनिंग है 9,000. बस हो गया क्वेश्चन. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर, दैट इज इन हाउ much amount will be debited to income and expenditure account. So please note down. Okay, that is in 480, 489. 489 में आप माइनस करिए 21, तो ये हो गया आपका 8. 8 में से 2 गया 6. 468 is the answer. Yes, the answer is 4,68,000, and this amount will be credited to the income and expenditure account. So please note down this question in your copy और इसको कैसे शो करना है आप शो करना. ठीक है. Of the book are, so how will you deal with the following item in the final accounts of Chetak Club Jaipur as at 31st March 2019? Prize fund 80,000, interest on prize fund investment 6,000, prize given 10,000, prize fund investment on 1st April 2018 60,000, donation for prize fund 25,000, and you have to prepare the balance sheet of the not-for-profit organization. So in this situation, firstly हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ, क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, चेतक क्लब. चेतक क्लब एंड द डेट इज जयपुर एज एट 31st March 2019. और बैलेंस शीट का हमने बना दिया फॉर्मेट. liability amount, assets amount. Is that clear? अब हम लोग इसको शो करते हैं each and every information को in the balance sheet of the Chetak Club. The first will be a prize fund. तो कहां शो करेंगे, in the liability side of the balance sheet. Prize fund and the value is 80,000. Second will be a interest on prize fund investment. तो वो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. Interest on prize fund investment and the interest will be 6,000. Price given, ये क्या हो जाएगा, माइनस. Price given that is at 10,000, माइनस हो गया. Price fund investment, it will be shown in the asset side of the balance sheet, and price fund investment will be 60,000. और है आपका डोनेशन फॉर प्राइज फंड. डोनेशन मिला प्राइज फंड के लिए 25,000. अब आप क्या करो, नेट वैल्यू निकाल लो. एसेट्स में आपने 60,000 लिखा है, वो सही है आंसर. लायबिलिटी में कितना आंसर आएगा, 80, 86, 100, 86 एंड 25 कितना हुआ, 115, 1,05,000, 1,01,000. तो चेक करके देख लो आप लोग. 8,
31, 8 or 6, 86, 25 is 1, 11, 10 minus 4 to 101. So you can see that how we will show the price fund in the liability and asset side of the balance sheet. Now we are moving to the next question. Let's we move to the one more question which are related to the preparation of the balance sheet and which are related to the presentation of the specific fund in the balance sheet. But अभी मैंने आपको बताया था accrued interest का concept, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, वो भी देख लीजिए आप लोग. एंड आई रिक्वेस्टेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करिए. वो इसीलिए छोड़ा जा रहा है ताकि आप घर पर उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए. ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 will be presented in the financial statement of Ashoka Club. Aishko Club, sorry. So this is in question number 6 and the balance sheet of what? Ashko Club, and date is 31st March for the year ended 31st March 2018, and this is in format liability amount, assets amount. ये देखिए मैंने बैलेंस शीट बना लिया अच्छे से. ओके, अब हम इसमें वैल्यूज को शो करेंगे. कैसे वैल्यूज को शो करेंगे? सो पहला आइटम दिया है टूर्नामेंट फंड 1,50,000, तो उसे लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ टूर्नामेंट फंड इज 1,50,000. सेकेंड है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000, तो इसे हम लोग कहां शो करेंगे? एसेट साइड में. जनरली जितने का फंड होता है उतने की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं होता. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है उसके अलावा? इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. आपको इनकम हुआ तो इसको अंदर पहले लिखना चाहिए था, इसको भी इनर कॉलम में लिखना चाहिए था, मिस्टेक्स हुई है. इनकम हुआ टूर्नामेंट फंड से, तो आप इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन इनकम फ्रॉम यानी इंटरेस्ट मिला टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 18,000 रुपए. नीचे लिखेंगे का एडजस्टमेंट गिवन है. एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज 6,000, यानी अभी 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना बाकी है. तो हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है? 2. तो पहला ये चीज ऐड होगी यहां पर, एक्रूड इंटरेस्ट मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, तो ये हो जाएगा 1,56,000. और यहां पे भी वो क्योंकि यहां पर जो हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, वो टोटल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, चाहे वो पैसा मिला हो चाहे स्टिल मिलना हो. तो ये जाएगा 24. नेक्स्ट है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000. तो ये माइनस हो गया. कितना वैल्यू दिया है? 12,000. सो 150 12 24 12, तो ये हो जाएगा 162. सो 162 will be shown in the liability side of as a tournament expense, a tournament fund, and in the asset side the tournament fund investment will be a 1,56,000. Yes. So please note down this solution in your copy properly. Now so let's we move to the question number 29B, and this question is also related to the consumable goods, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 29B, and the question number 29B says that how are the following item treated
while preparing the final account of a club for the year ended 31st March 2019, and the receipts and payment account is clearly says that the sale of sports material is 1,37,000, book value is 1,10,000. Creditors for sports material is 3 lakh and cash purchase of sports material is 80,000. Stock of sports material 120 at beginning, closing is 150. Opening creditors for sports material is 45 and closing creditors for sports material is 60,000. फर्स्टली आपने इसमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी। पहला वर्किंग इसमें अपना ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कितनी वैल्यू दी हुई है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 3 लाख। इसमें ऐड करोगे आप ओपनिंग क्रेडिटर्स, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करोगे और ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करोगे, माइनस करोगे। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स विल बी 60,000 एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स विल बी 45,000। सो ये आपका जो वैल्यू आएगा 3,15,000, दैट इज एन क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। आपने ड्यूरिंग द ईयर इतने का स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किया, परचेज किया, 3,15,000। ये आपका आ गया क्रेडिट परचेज। अब उसमें से आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने कैश परचेज कितना किया है, 80,000। तो उसमें आप जब सही कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगर ऐड करोगे 80,000 तो ये आ जाएगा आपका टोटल परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आपका टोटल परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर आपको पता है क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। So closing stock of sports material will be a 150 and opening will be a 120. ठीक है, ये आया। तो आपके पास कंज्यूमेबल गुड्स कितना होगा, एक तरह से हम बात कर लें तो ये कह सकते हैं हम 130 ऐड हो जाएगा, 150 प्लस होना चाहिए, 120 माइनस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्लोजिंग माइनस होता है और ओपनिंग प्लस होता है ना। सो ये आपका हो जाएगा 120, 150 माइनस 30 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 365। इतना आपका आंसर आना चाहिए था, अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। बट क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि आपने 1,10,000 रुपए की मशीन स्टेशनरी क्या कर दी, सेल कर दी। तो उतना चला गया सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। आपने इतने की स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दी, कितने की बेच दी आपने, 1,10,000। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने 2,55,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किया है, कंज्यूम किया। तो ये वैल्यू आपकी कहाँ शो होगी, इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले तो इसको ध्यान समझ लो, दिस वैल्यू विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड नाउ इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ शो करेंगे, डेबिट में। अब इसमें कुछ छोटे मोटे इफेक्ट्स हैं। जैसे पहला इफेक्ट है आपका कि बुक वैल्यू स्पोर्ट्स मटेरियल की कितनी थी, 110। बुक वैल्यू स्पोर्ट्स मटेरियल की कितनी थी, 110, और आपने उसको सेल कितने में किया, सेल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपका है 137। तो आपको ये जो 27 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसे आप कहां शो करोगे, इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो ये डेबिट पे शो होगा, ये क्रेडिट में शो होगा 27,000। दूसरा अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो सिंपल सा है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन का तो कितना लायबिलिटी शो करेंगे, कितना, वो तो एकदम क्लियर है कि एसेट साइड में आपका स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना शो होगा,
वो इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मेटल 150 है। आपको फाइनल स्टेटमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना। और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स कितना है यहाँ पे 60,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट नंबर 1 कि ये 2,50,000 डेबिट होगा, और दूसरा इफेक्ट ये होगा आपका क्रेडिट साइड में होगा। कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। और ये जो बैलेंस शीट आपने बनाया है इसमें क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एंड का, करंट ईयर की बैलेंस शीट है ना, एंड का लायबिलिटी होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो इस साल का है इसे हम एसेट साइड में शो करेंगे। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज सॉल्यूशन इन योर कॉपी प्रॉपरली। So in today's video we discussed a lots of the important questions, and I hope today we solve all the questions very easily. आज के लिए इतना ही। Thank you, take care, bye.